Good morning, students. Today we are starting with our new topic, protoplast culture. This is your plant biotechnology subject topic. So let's start with this. First, what is protoplast? You all know about this, but let's do a small revision work of this. Protoplast is a plant, bacterial or fungal cell that had its cell wall completely or partially removed using either mechanical or enzymatic means. If anything is not clear to you, we can discuss in the live class. Now I am just giving you a small introduction of this. Protoplast, in which the cell wall of the cell is entirely removed, then we will call it protoplast. If cell wall is partially removed, we will call it spheroplasts. More generally, protoplast refers to the unit of biology which is composed of cell's nucleus and surrounding protoplasmic material. Or some students understand that nucleus surrounded by the cytoplasm. Only that portion is called protoplast, which is without the cell wall. Protoplasts are naked spherical cells obtained from the plants. This word is important. When you remove the cell wall, the cell, or you can say this nucleus surrounded by the protoplasmic material or cytoplasmic material looks spherical. Once it will attain the cell wall, the spherical shape changes. After removing the cell wall, we can grow the protoplast on the solid media or liquid media. Protoplasts are cells of which cell walls are removed and cytoplasmic membrane is the outermost layer in such cells. So without cell wall, rest of the things are there. Protoplast is introduced in 1880 by Hensten. First isolation of protoplast was achieved by Klerker in 1892 by mechanical method. Real beginning in protoplast research was made by Cocking in 1960. This year is most important because in 1960 the real research was started and he used enzymatic method for cell wall removal. After that, in 1971, Rakbe and his associates were successful to achieve the regeneration of whole tobacco plant. So first time removal was done and the culturing was done by Cocking, and tobacco plant successfully grown by protoplast culture in 1971. Cell wall regeneration. This step actually should come or to be discussed after the protoplast separation, but I am telling you that how this protoplast is important. Protoplast culturing we can do, but after removing or after growing the protoplast, it is necessary that this protoplast should make a cell wall around itself. Only then culture will be completed. Cell wall regeneration may be completed in 2 to several days, although protoplast in culture generally start regenerating a cell wall within few hours after isolation. Protoplast lose their spherical shape once the cell wall is complete. Regeneration of cell wall can be demonstrated by using calcal fluor white ST fluorescent stain. What will happen here? To small volume of protoplast suspension, equal volume of 0.1% calcofluor solution is added, and we will wait for 5 minutes. Then we will observe under the microscope. If there will be cell wall formation, it will give a fluorescent color, and the protoplast remain dark, as in this figure you can see this fluorescent color is of the cell wall. So it is a confirmatory test that protoplast has started forming cell wall. This is the culturing has been done. Here fusion of the protoplast has been done after 4 days, after 4 weeks, 4 weeks, and after 8 to 10 weeks, and then callus is formed. From this callus shoots has been grown, and after 16 weeks your plant is
ready. Now starting with the introduction. Protoplasm is naked cell surrounded by plasma membrane. Already discussed, it is fragile but can be cultured and grow into whole plant. Cell can originate from any type of tissue. So if we want protoplast culture, we can take any cell. In 1960, E.C. Koking started this culturing. Protoplasts are plant cells with a plasma membrane but without cell wall. It gives a starting point for many of the techniques of genetic manipulators of the plant, in particular the induction of soma-clonal variation, somatic hybridization, genetic transfer. They are cultivated in liquid as well as on solid media. This I have told you in the soma-clonal variation also. That time I told you that the culturing can be done by cell, callus or protoplast. And I told you that time also that culturing by protoplast and callus is more frequently done if we want to get new plants or new variety of the plants. Protoplast isolation. It refers to the separation of protoplasm from the plant tissue. Important to isolate viable and uninjured protoplast. तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए यही है कि आप जब भी प्रोटोप्लास्ट को सेपरेट करें तो जो प्रोटोप्लास्ट है आपका वो वाइबल होना चाहिए, मतलब डेड ना हो जाए, और दूसरा अनइंजर्ड रहना चाहिए, नहीं तो उसके अराउंड सेल वॉल ग्रो नहीं करेगी. Isolation of protoplasm is done by two methods. It can be, first, protoplasm can be isolated from almost all plant parts. It can be roots, leaves, fruits, tubers, root nodules, endosperm, pollen cells and cells of the callus tissue. And we normally use two methods for the separation, mechanical method and enzymatic method. Isolation of protoplasm in brief, mechanical and enzymatic method. Mechanical method is most done occasionally. Enzymatic method is done जनरली यही मेथड यूज़ किया जाता है और ये मेथड कम यूज़ किया जाता है. इसके एडवांटेजेस क्या हैं? मैकेनिकल मेथड के एडवांटेजेस ये हैं कि इसमें हम एंजाइम यूज़ नहीं कर रहे तो अननोन इफेक्ट ऑफ एंजाइम नहीं होगा. डिसएडवांटेजेस ये हैं कि सेल, क्योंकि मैकेनिकल मेथड कर रहे हैं तो सेल्स टूट सकते हैं. एंजाइमेटिक में हम एंजाइम्स यूज़ करेंगे. लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोटोप्लास्ट हमें मिलता है. सेल्स भी टूटते नहीं है क्योंकि आपने इनके ऊपर कोई जोर नहीं लगाया, कोई क्रशिंग नहीं की है. ऑस्मोटिक श्रिंकेज इज़ मच लेस. ऑस्मोटिक श्रिंकेज नहीं होती तो सेल बचा रह जाता है, लेकिन अगर मैकेनिकल करते हो तो वो श्रिंक हो जाता है. डिसएडवांटेजेस, क्योंकि हम एंजाइम्स यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये नहीं पता कि हमारे प्रोटोप्लास्ट पे इन एंजाइम्स का नेगेटिव इफेक्ट ना हो जाए या इफेक्ट होता है या नहीं होता है. सेम थिंग here discussed, that was in flowchart method. Here I have discussed separately. Mechanical method, the cells are kept in suitable plasmolytic and cut with a fine knife. इसमें क्या करते हैं? सेल्स जो हैं उनको एक मीडिया के अंदर रखते हैं, उसको थोड़ा सॉफ्ट करते हैं और उसके बाद उसकी जो सेल वॉल है उसको हम नाइफ के साथ कट करते हैं. सेल्स वर कट ओनली थ्रू द सेल वॉल, रिलीजिंग इंटैक्ट प्रोटोप्लास्ट. सेल्स को जो है सेल वॉल को हटा दिया जाता है और प्रोटोप्लास्ट हमारे पास रह जाता है. अब ये जो मेथड है ये बहुत लेबोरियस और टीडियस है क्योंकि सेल वॉल को रिमूव करना कोई बहुत ईजी काम नहीं है. मैकेनिकल प्रोसीजर गेव low yield of protoplasm and could be utilized for only highly vacuolated and non-meristematic cells. ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये ज़्यादा जो सेल्स के लिए हम यूज़ करते हैं ये वही सेल्स रहते हैं जिनके अंदर वैक्यूल्स रहते हैं. वैक्यूल्स रहेंगे तो मैकेनिकल मेथड जो है वो
सक्सेसफुल होता है। सक्सेसफुल क्यों होता है? क्योंकि वैक्यूल्स होने के कारण जब आप इसको पानी के अंदर या ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करते हैं तो जो आपका सेल है श्रिंक जल्दी होता है, क्योंकि वैक्यूल्स हैं वो ज़्यादा शुगरी मटेरियल या जिसके अंदर भी आप रखेंगे उसको सोक कर लेगा, जिसकी वजह से श्रिंक हो जाएगा आपका, प्लाज्मोलाइसिस जल्दी हो जाएगी, और इसकी वजह से जो प्रोटोप्लास्ट है और सेल वॉल है उसके बीच में गैप बन जाएगा। जब वो गैप बन जाएगा तो आपको सेल वॉल रिमूव करना ईजी हो जाएगा। और नॉन मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर जो सेल वॉल है वो इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती है और उसके प्लाज्मोडेस्मेट जो पोर्शन है उसमें गैप ज़्यादा होता है, तो नॉन मेरिस्टेमेटिक सेल्स में सेल वॉल को रिमूव करना इजी होता है और जो वैक्यूलेटेड है उनमें भी। प्लाज्मा टिश्यूज जो भी रहते हैं उसको प्लाज्मोलाइसिस करवाया जाता है। वही मैंने आपको बताया कि प्लाज्मोलाइसिस श्रिंकेज करवाई जाती है, तो अंदर का पोर्शन है श्रिंक हो जाए। श्रिंकेज कब होती है? आपको शायद याद होगा ऑस्मोसिस, और आपने डिफ्यूज़न पढ़ा है। ऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं जिससे कि पानी जो है वो बाहर निकल जाए। जब एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल जाएगा तो उसकी अंदर की जो साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाएगा, और इस वजह से जब श्रिंकेज की वजह से प्रोटोप्लास्ट और सेल वॉल के बीच में गैप पड़ जाएगा। आप माइक्रोस्कोप के अंदर उस सेल को ऑब्जर्व करोगे और उसके बाद वो मैंने आपको जो बताया श्रिंकेज हो गई है उनके बीच में जो गैप है, तो आप आउटर लेयर को नाइफ की हेल्प से सेपरेट कर दोगे। इससे क्या होगा? आपके पास प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा और आप प्रोटोप्लाज्म को कलेक्ट कर लोगे। तो इसके लिए श्रिंकेज करवाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? टिश्यूज़ को हम 1.0 m सुक्रोज के अंदर, सुक्रोज के सॉल्यूशन के अंदर हम अपने सेल्स को रखेंगे जिससे श्रिंकेज हो जाएगी। अनडैमेज्ड प्रोटोप्लाज्म रिलीज हो जाएगा और उसके बाद आप इसको सेपरेट कर लोगे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो ये आती हैं, सम सेल्स रिलीज अनकट कंप्लीट प्रोटोप्लाज्म व्हाइल द रेस्ट प्रोड्यूसेस ब्रोकन डेड प्रोटोप्लाज्म। कई बार आप जब उसको खुद मैन्युअली क्योंकि सेपरेट कर रहे हो तो आप उसमें से कुछ अनकट मीन्स आप प्रोटोप्लाज्म को कंप्लीटली सेल वॉल से अलग नहीं कर पाते हो, आप कटिंग करते हो प्रोटोप्लाज्म को भी डैमेज कर सकते हो। या दूसरा ये भी हो सकता है कि जब आप कटिंग कर रहे हैं तो आपका जो नाइफ है वो प्रोटोप्लास्ट को भी, प्रोटोप्लास्मिक लेयर जो है उसको भी कट कर दे, सेल वॉल के अंदर प्रोटोप्लास्मिक जो लेयर है उसको भी कट कर दे। तो यहाँ पे ये या तो कम्प्लीटली आपने कट नहीं किया या आपने प्रोटोप्लास्ट को भी कट कर दिया। ये दोनों प्रॉब्लम्स जनरली आती हैं। मेथड ऑफ आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, जनरली क्या मेथड है? इसमें एंजाइमेटिक मेथड है, तो मैं आपको अभी बता रही हूँ क्योंकि आगे हम एंजाइमेटिक मेथड डिस्कस करेंगे। यंग लीव्स ऑफ हेल्दी प्लांट्स you have taken, sterilize with sodium hypochlorite, rinse leaves for 6 minutes with sterile water, then sterilized leaves you have now, remove lower epidermis with a forceps, place stripped surface of leaf in contact of 13% mannitol for 3 hours। यहाँ पे आपने अपनी जो लीव्स हैं उनको 13% मैनिटोल में 3 घंटे के लिए रखा। मैनिटोल मीन्स सुक्रोज मटेरियल में रखा। टर्जिड सेल्स आर प्लाज्मोलाइज्ड एंड प्रोटोप्लाज्म फ्री फ्रॉम सेल वॉल। यहाँ पे आपने टर्जिड सेल्स जो आपके प्लाज्मोलाइज्ड सेल थे, श्रिंक्ड सेल थे, उसमें से प्रोटोप्लाज्म को लेयर को अलग कर लिया और मतलब सेल वॉल को अलग कर दिया, तो आपके पास प्रोटोप्लाज्मिक लेयर वाला प्रोटोप्लास्ट अब आ गया। लीव्स हैविंग प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स, लीव्स के पास अगर यहाँ पे आपने उसको मैन्युअली नहीं किया तो आपके पास लीव्स में प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स हैं। अब आपने एंजाइम का मिक्सचर बनाया। एंजाइम का मिक्सचर हो सकता है सेलुलेज, पैक्टिनेज, प्रोटीएज, लाइपेज। आपने पील 1 ग्राम ऑफ लीव्स मिक्सचर विद एंजाइम प्रिपरेशन, पील्ड लीव्स इन एंजाइम सोल्यूशन, इंक्यूबेट फॉर फ्यू आवर्स, प्रोटोप्लास्ट सस्पेंशन। यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे ये हुआ है कि आपने अगर मैन्युअली भी सेपरेट कर दिया है तो भी आपके जो लीव्स के अंदर सेल्स पड़े हैं आपको उनको सेपरेट करना है। या मैंने आपको ये बताया अब यहाँ पे आपने मैन्युअली अलग कर लिया तो आपके पास प्रोटोप्लास्ट आ गया। अगर आपने सपोज यहाँ पे ऐसा नहीं करना तो आप स्टरलाइज्ड लीव्स को सीधा थोड़ी देर के लिए सॉल्यूशन में रखो, प्लाज्मोलाइज्ड
करने के लिए, ताकि सेल्स प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएं। और उसके बाद आप मैन्युअली मत कीजिए, आप एंजाइम बनाइए, एंजाइम का प्रिपरेशन कीजिए और आप उसके लीव्स का, जो आपने प्लाज्मोलाइज्ड लीव्स रखे हैं जिसके अंदर सेल्स हैं, उस लीव को आप एंजाइम्स में डिप कर दीजिए और उसके बाद एंजाइम सोल्यूशन में उसको इंक्यूबेट करके रखिए और आपके पास जो आपका सोल्यूशन है उसके अंदर प्रोटोप्लास्ट सस्पेंशंस आ जाएंगी, प्रोटोप्लास्ट रिलीज हो जाएगा। वही एंजाइमेटिक मेथड को हम डिटेल में करेंगे। रेफर्स टू यूज ऑफ एंजाइम टू डिसॉल्व दिस सेल वॉल फॉर रिलीजिंग प्रोटोप्लाज्म। अगर आपने मैन्युअली नहीं अलग करना, एंजाइम से हेल्प लेंगे। एडवांटेज, used for variety of tissues and organs such as fruit, roots, leaves. Osmotic shrinkage is minimum because आप मैन्युअली नहीं करना चाहते, इसलिए आप इसको मैनिटोल के या सुक्रोज सोल्यूशन में कम टाइम के लिए भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप कम टाइम के लिए रखेंगे तो श्रिंकेज कम होगी, श्रिंकेज कम होगी तो आपके पास होल प्रोटोप्लास्ट रहेगा, श्रिंक हुआ वाला नहीं होगा, होल प्रोटोप्लास्ट आएगा आपके पास। सेल्स रिमेन इंटैक्ट एंड नॉट इंजर्ड, क्योंकि आप कोई नाइफ नहीं चला रहे हो, नाइफ नहीं यूज़ कर रहे हो, तो आपके लिए ये अच्छा है। प्रोटोप्लास्ट रेडिली ऑब्टेन्ड, जल्दी से जल्दी मिलेगा, ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा, क्योंकि आप मैन्युअली एक एक सेल वॉल नहीं हटा रहे हो। ये आपका मेथड जो दिखा रहा है, ये कैसे किया आपने। लीव को स्टरलाइज किया, लीव को स्टरलाइज करके एपिडर्मिस पीलिंग किया, ऊपर की जो लेयर रहती है उसको पील कर दिया, सेल्स को प्लाज्मोलाइज्ड कर दिया, मिक्सचर में रखा मैनिटोल के, और उसके बाद आपके पास ये एंजाइम के सोल्यूशन में रखा। आपके पास ये आउटर लेयर जो है वो रिमूव होनी शुरू हो गई और आपने अंदर का जो राउंडेड पोर्शन है जिसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं वो ले लिया। आपके पास प्रोटोप्लाज्म के पैलेट्स आ गए हैं, सोल्यूशन में डाल लिया। आपने आइसोलेट कर लिया प्रोटोप्लाज्म को, आपने पेट्री प्लेट के अंदर डाल के उसके सेल्स को आइसोलेट कर लिया। फिर हम इनकी फ्यूज़न करवाएंगे। फ्यूज़न करवाने के लिए आगे मैथडोलॉजी आएगी, ये एक एंड में आना चाहिए था लेकिन बीच में एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको बीच में समझ आए जब मैं बात करूँगी। फिर हमने जो इसके इंडिविजुअल आइसोलेटेड सेल प्रोटोप्लास्ट थे उनको फ्यूज़न करवाना है। फ्यूज़न हम 2-3 तरीक़ों से डिस्कस करेंगे, लेकिन फ्यूज़न करवा दिया। फ्यूज़न क्यों करवा रहे हैं? फ्यूज़न इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि अगर हमको फ्यूज्ड प्रोटोप्लाज्म चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि इसके अंदर वेरिएशंस आए, हम डिफरेंट प्लांट के हमने प्रोटोप्लास्ट लिए हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ पे अलग अलग प्लांट्स का जो न्यूक्लियस है वो आपस में ज्वाइन हो, क्योंकि हम हाइब्रिड बनाना चाहते हैं, तो हमने फ्यूज्ड प्रोटोप्लाज्म को ग्रो करवा दिया। हमने उसकी प्लेटिंग कर दी, जैसे कि हम एनिमल बायोटेक में भी करते हैं, प्लेटिंग करते हैं। प्लेटिंग के बाद हमने उसको दोबारा से नए मीडिया में शिफ्ट किया। नए मीडिया में शिफ्ट करके सेल वॉल की जनरेशन हो गया और उसके बाद सेल वॉल जब बन गई, वॉल बन गई, तो फर्स्ट डिवीज़न हुई, क्लम्प ऑफ सेल्स, कॉलोनी बन गई, कॉलोनी से कैलस बन गया, कैलस डिफ्रेंशिएट हुआ और फिर रीजनरेटेड प्लांटलेट आ गया। रीजनरेटेड प्लांटलेट को आपने टेस्ट ट्यूब से पॉट में शिफ्ट किया, पॉट से फिर आप दोबारा से सेम प्रोसीजर कर सकते हो, या इसको आप नई वैरायटी के प्लांट को आप फील्ड में शिफ्ट कर सकते हो। एंजाइमेटिक मेथड 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट मेथड एंड सीक्वेंशियल मेथड। ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।